Yes, everyone. Our next topic is soluble and insoluble substances. As its name shows, बेटा soluble means जो चीज़ें dissolve हो जाती हैं. The substance that will dissolve in water are called soluble substances, which doesn't dissolve are called insoluble substances. जैसे we have learned in the previous practical that I show you by the practical that I have taken water in a glass and then try to dissolve salt into it and it get dissolved, and from this thing you will learn that salt is a soluble substance. And the same way, if we take sugar, we try to dissolve into the water, it will dissolve in water, so it will also be known as soluble substance. And other examples are honey, milk powder, soap powder, etc. These all are the soluble substances. Next is insoluble substances. He said substances like mud, oil, rice, stones, etc. do not dissolve in water, are called insoluble. For example, I will show this thing by the practical. Let's see. Here see beta, I have taken water in a glass and I have taken few stones, right, gravels. So let's try to put into the water and check that does it dissolve or not. Let's stir. Stir means हिलाना किसी चीज़ को. Let's stir it with the spoon. Let's see. Check the stones. Are the stones there in the glass or get dissolved? These are still in the glass, right beta? So what does it means? It means that stones are the gravels are the insoluble substances. So next is objects that float and sink in water. Float means beta floating things होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं. Sink means जो पानी के अंदर डूब जाती हैं. You must have observed that some things float in water while some things sink, right? आपने देखा होगा जैसे कि I have put some stones in the water and it gets sink. ये पानी के नीचे चले गए. It settle to the bottom. ये नीचे चले गए हैं और ये क्या हो गए हैं? Sink हो गए हैं. But other than stones, if I put something like, so I have taken a leaf. This is a leaf of mint that I have taken. You can take any other leaf and let's put it into the water and see whether it dissolves, whether it float or sinks. Check it. What happens? It is floating on the water. तो जो हमारे कंकर थे वो क्या हो गए हैं? वो सिंक पे सिंक हो गए हैं, सेटल टू द बॉटम हो गए हैं. एंड जो हमारा लाइक लीफ है वो क्या है? दैट इज floating over the water. Okay, he said the things that are lighter than water, वो चीज़ें जो पानी से हल्की होती हैं, floats in water, वो पानी पे क्या करती हैं? float करती हैं. जैसे कि mint leaf I have taken, it is floating over the water. And things that are heavier than water, जैसे कि कंकर, that are heavier than water, जो पानी से उनका जिनका वेट पानी से ज़्यादा होता है वो क्या करती हैं? वो सिंक हो जाती हैं वाटर के अंदर, राइट बेटा? एंड ही सेड वाटर एक्सर्ट्स अ अपवर्ड फोर्स. वाटर जो क्या करता है? एक ऊपर को फोर्स लगाता है. इट एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स, ऊपर को धक्का लगाता है. जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट डूबते हैं ना उनको ऊपर को धक्का लगाता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड बयान्सिव, राइट? दैट फोर्स इज कॉल्ड बयान्सी. Buoyant force helps a thing to float. तो जो चीज़ें बेटा जब कोई चीज़ हम पानी के अंदर डालते हैं ना, लाइक जो चीज़ उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है, जब आप कोई डालते भी हो पानी तब भी उसको ऊपर को फोर्स लगाता है. लेकिन अगर उसका वेट पानी से ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगी? सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी. लेकिन अगर कोई चीज़ हल्की है, उसका वेट पानी से कम है, तो जब वो पानी के अंदर हम उसको डालोगे आप, ठीक है, तो वो पानी क्या करेगा? उसको ऊपर को फोर्स लगाएगा. उस फोर्स को क्या बोलेंगे? बायोन्सी. बायोन्ट फोर्स जो होती है वो चीज़ों को फ्लोट करने में हेल्प करती है, राइट बेटा? ओके, नेक्स्ट ही सेड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट अ स्टील प्लेट दैट वेज द सेम एज द स्टील स्पून फ्लोट्स इन वाटर.
ही सेड कि अगर आप स्टील की प्लेट की बात करो जिसका की वेट स्टील के स्पून के जितना ही होता है, वो क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है, वाइल जो स्पून होता है वो सिंक कर जाता है, वो डूब जाता है। इसका कारण अब उसने क्या बताया और रीज़न बताया उसने, ही सेड द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट द प्लेट ऑक्यूपाइज डिटरमाइंस हाउ मच वाटर इट विल पुश आउट ऑफ द वे। ही सेड कि जो प्लेट का जो स्पेस प्लेट जो है कवर कर रही है, जो स्पेस प्लेट कवर कर रही है, जितना एरिया वो कवर कर रही है ना, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हाउ मच वाटर इट विल पुश आउट ऑफ द वे, कि ये कितने पानी को अपनी तरफ से इधर उधर को पुश कर रही है। दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ लार्जर फॉर द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जितनी चीज़ें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उतना वो पानी को जो है ज़्यादा इधर उधर पुश करती हैं। सो द वेट ऑफ द पुश्ड वाटर इज़ मोर देन द वेट ऑफ द प्लेट। सो जितना पानी उसने प्लेट ने इधर उधर को पुश किया उसका वेट ज़्यादा था, राइट, देन द वेट ऑफ द प्लेट। जितना पानी प्लेट ने इधर उधर पुश किया वो वेट, उसका पानी का वेट ज़्यादा था जितना कि प्लेट का वेट था। सो वाटर एक्सर्ट्स अ बियॉन्ड फोर्स टू मेक द प्लेट फ्लोट। तो पानी ने क्या करा, उसको बियॉन्ड फोर्स लगाई ताकि प्लेट जो है उसके साथ क्या हो गई, फ्लोट करने लगी। और स्पून जो था उसने क्या करा, उसने स्पेस कम ऑक्यूपाई करी है और वो कम पानी को इधर उधर पुश करेगा, राइट। तो स्पून का वेट जो है वो ज़्यादा हो गया, उसके साथ क्या करेगा, वाटर जो है उसको कम फोर्स लगाएगा, तो स्पून क्या हो गया, वो सिंक कर जाएगा, राइट। ये देखो उसने दिखाया हुआ है, ही हैज़ टेकन अ प्लेट, एंड प्लेट के साथ क्या होता है कि तो ज़्यादा पानी पुश होता है और उसको फिर बियॉन्ड फोर्स भी ज़्यादा मिलती है। उसके साथ क्या होता है कि प्लेट जो है वो फ्लोट करती है और स्पून दैट गेट सिंक इन द वाटर। इन दिस वे वी हैव डन दिस चैप्टर। Hopefully now you will able to answer the new words by yourself, that soluble substance जो dissolve हो जाते हैं, insoluble जो dissolve नहीं होते। सल्यूट क्या है, जो आपने सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे कि वाटर। सल्यूशन क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स हो जाते हैं तो सल्यूशन बनता है। एंड ब्योंसी इज़ द अपवर्ड फोर्स जो वाटर एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट बेटा। So in this way you are able to give answers of the take the correct answer, right beta? Okay, in case if you have any query you can ask me, otherwise